Hi everyone. My name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who are not able to see positivity in anything, in any areas of their life. So, if you are the one who is always negative and struggling to, be positive and feel good and feel happy about yourself and about your life, then my channel is for you. So, today I wanted to talk about importance of grooming. Like कि grooming, खुद को groomed रखने का, why it is so important for us to be groomed. It is not just to please others, to make others feel good about us, or for the compliments. Of course we feel good when somebody compliments us, but it is also about that how well you treat yourself. Like, do you really treat yourself well? Do you really take care of your body, of your skin, of your hair, of your nails? Um, and do you really, take care of your body? And do you really wear what you really like and what suits your body? It's like, I've seen many women and men, they don't take care of themselves, they don't dress well, they don't, they are good. They are good, they can look better, but they are not taking care of themselves. कुछ भी पहन लेते हैं, कैसी भी टी शर्ट पहन लेते हैं. मैंने लड़कियों को भी देखा है, वो कैसी भी टी शर्ट पहन लेती हैं, कैसा भी पैंट पहन लेती हैं. They just don't take care of themselves. They don't treat themselves special. So जब इन लोगों से बात करो ना, तो ये ऐसा बोलेंगे मेनली कि आई डोंट नीड वैलिडेशन ऑफ अदर्स. मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतना कुछ करूं अपने लिए. मुझे ऑफिस जाना होता है, मुझे सुबह उठना होता है, एंड आई डोंट हैव टाइम टू कोम माई हेयर और टू एक्चुअली स्पेंड 5 to 10 or 15 minutes कि मैं किसी क्लोथ्स को डिसाइड करूं कि मुझे ये पहनना. आई डोंट हैव टाइम टू फिगर आउट व्हाट सूट्स माई बॉडी. आई डोंट हैव टाइम कि मैं ये सॉक्स खरीदूँ, या फिर ये शूज़ खरीदूँ, या फिर ये ज्वेलरी खरीदूँ. आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स. I have more other important works to do, like my work and other stuff. And deep down, what happens that when they stand with people who are taking care of themselves, who dress well, who take care of themselves, their body, and everything about it, they feel inferior. They start to feel inferior. They start to feel bad about themselves. They start to feel like they are not worthy, or they are not deserving, or or the other person who's taking care of themselves are doing it on purpose, is doing it on purpose to demean them, to demean their light. And maybe sometimes what happens that these type of people, they start to demean the light of the person who is taking care of themselves, who do care about their clothing, their body, and their nails, their health, and the food they eat, the clothes they wear. They start to dim their light because they feel so inferior, they feel so threatened by their light. And people like who take care of themselves, they start to trigger them. बस आप उनके साथ घूमोगे या फिर वो आपको देख लेंगे, they will start to get triggered by the people who take care of themselves, and they start to demean them by telling them that they are only dressing well or taking care of themselves because they want to impress others, because they want others validation, because they want to please others, just so so that they can feel good about themselves, that they are not doing it, they are better off not taking care of themselves, they are better off not grooming well.
एंड धीरे 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 अगर ऐसे दो लोगों में फ्रेंडशिप हुई है तो वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी, बिकॉज it used to happen to me a lot. I used to attract people in my life who have really, women mainly, who have, even men also, who have really low self worth. They never used to take care of their clothes, their dressing, their body, their food. They always used to say ki I don't have time for it, and it is too much time consuming, it is waste of time. They have other important work to do in their life, which is earning money and other stuff. You see, you are in this life, and one of my friend told me, and आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, that you are the main character of your life. Then if you are the main character, then why you are not treating yourself well? Why you are not focusing on yourself? Okay, dressing to seek validation is a different thing. When your whole focus on the external beauty, when you focus extremely on your external beauty only, कि आपका जो सेल्फ इस्टीम है या फिर सेल्फ वर्थ है वो सिर्फ क्लोथिंग से या फिर अच्छे दिखने से या फिर अच्छे ब्रांड्स पहनने से, अच्छे परफ्यूम लगाने से, अच्छे डिफरेंट टाइप का हेयर करने से, अगर इन्हीं सब चीज़ों से आता है तो वो गलत है, वो नहीं करना. लेकिन अगर आप कुछ पहनना चाहते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ वेल, बिकॉज योर बॉडी इज अ टेम्पल and you want to decorate this temple, you want to take care of this temple, you want to nurture this temple, you want to focus on this temple, and you want to evolve with this temple. So if your body is a temple, जो सभी बोलते हैं, then आप अपने टेम्पल का ध्यान क्यों नहीं रखोगे? आप अपने घर के टेम्पल को इतना सजाते हो, इतना साफ रखते हो, इतना अच्छा रखते हो, क्यों रखते हो? अगर उसको भी फिर आप ऐसे ही छोड़ दो. ऑफ कोर्स, मतलब क्या ज़रूरत है कि आपको अपने टेम्पल को साफ क्यों रखना है? इसीलिए ना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है. आप चाहते हो कि लोग उसको देख के ये ना सोचें कि इसको कोई परवाह ही नहीं है, इसके घर में टेम्पल इतना गंदा पड़ा हुआ है, क्या ये कभी पूजा करती भी है वहाँ पे? क्या इसके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है, या फिर इसने सिर्फ दिखावे के लिए रखा हुआ है? You do it for yourself because you respect it, because you want to take care of it, because it is important. You don't want to disrespect it. सेम अगर आप अपनी बॉडी को भी एज ए टेम्पल देखोगे तो ये बोलना कि ये ड्रेस चूज़ करने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है. वी ऑल हैव इनफ टाइम इन आवर लाइफ्स. हम अपने टाइम को गलत जगह कंज्यूम करते हैं, गलत जगह वेस्ट करते हैं, बिकॉज हमें स्ट्रेस की आदत हो गई है लाइफ में, या फिर हमें छोटा फील करने की आदत हो गई है. तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो बहुत अपने आप में ही छोटा फील करते हैं और उन्हें हर चीज़ में ऐसा लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ, देयर बॉडी इज़ नॉट गुड, देयर लेग्स आर नॉट गुड, देयर हैंड्स आर नॉट गुड, and their face is not good, everything about them is not good, nothing suits them, they need to hide this, they need to hide that, no makeup suits them, वो कुछ भी पहन ले वो अच्छे नहीं लगते. तो आप अपने माइंड को सिर्फ नेगेटिविटी फीड कर रहे हो. एंड फिर आपके सामने एक ऐसा बंदा आएगा जो अपना ध्यान रखता होगा. पहले तो आप ट्रिगर होगे, पहले तो आप स्टार्टिंग में इंस्पायर्ड फील करोगे उसको देख के कि यू वॉन्ट टू बी लाइक दैट पर्सन, यू वॉन्ट टू लुक लाइक दैट पर्सन, एंड द एनर्जी इज सो गुड, बिकॉज आपको उसकी वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि वो अपना ध्यान रखता है. एंड कहीं ना कहीं आप भी वो चाहते हो. लेकिन धीरे धीरे करके आपको उसकी एनर्जी ट्रिगर करने लगेगी, आपको वो इंसान अच्छा नहीं लगना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको ये लगेगा कि यार मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि वो अपना ध्यान रख रहा है, वो अलग फ्रीक्वेंसी पे है, एंड आप अलग फ्रीक्वेंसी पे हो. आप उस शेम और गिल्ट में ही हो जहाँ पे आप खुद को सेल्फ हेट कर रहे हो, आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, और आपको लग रहा है कि
दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें तो बस वेस्ट ऑफ टाइम है, कौन ही इतना करता है, किसके पास इतना टाइम है, कौन टाइम लगा के आधा घंटा ये सब करे, खुद को ग्रूम करे, ये सब बेकार है, एंड देन आप उससे जेलस हो रहे हो। फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप सामने वाले को डिमीन करो, छोटा दिखाओ या फिर उससे जेलस हो जाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत कीजिए, लेकिन सामने वाले को छोटा दिखाने का या फिर उससे जेलस फील करने का फिर आपको कोई हक नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि आप खुद को वैल्यू नहीं करते, आपके लिए मैटर नहीं करता कि आप कैसे भी दिखो, आपके लिए मैटर नहीं करता कि आप अच्छे दिखो। अपने लिए हमें किसी को प्लीज करने के लिए अच्छा नहीं दिखना। ट्रस्ट मी, व्हेन यू ड्रेस वेल, व्हेन यू आर वेल ग्रूम्ड, ओके, व्हेन यू स्मेल वेल, भले ही आपने महंगे कपड़े नहीं पहने, मेरे पास भी इस टाइम पे आई डोंट अर्न दैट मच कि मैं बहुत महंगे कपड़े खरीदूं, बट नाउ आई हैव कम टू द अंडरस्टैंडिंग कि जो भी मैं खरीद रही हूँ वो मैं वो खरीदूं जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरी बॉडी टाइप पे अच्छा लगे, जो जिसको पहन के मुझे कॉन्फिडेंट फील हो, जिसको पहन के मुझे ईजी फील हो कि इसको पहन के मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, एंड स्टिल आई फील कि ये चीज़ मुझ पे अच्छी लग रही है। सो व्हेन यू ड्रेस वेल, you start to feel good about yourself, you start to feel fresh, you start to feel कि you just start to feel confident, you start to feel more confident। और उससे पहले ये ज़रूरी है ये डिसाइड करना, धीरे धीरे ये समझना कि आपकी बॉडी पे क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पहनना अच्छा लगता है, आपको किस टाइप के मटेरियल पसंद है, आपकी बॉडी पे किस टाइप के कपड़े फ्लो करते हैं, एंड आप उसको पहन के कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, कितना अच्छा फील कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, आप जब वो करना स्टार्ट करोगे ना, यू विल स्टार्ट टू feel the shift in you. You will start to feel more confident, your taste in friends and in men will change, and you will start hating yourself। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ शेमिंग से तो बाहर आना पड़ेगा ना। आप खुद को इतना सेल्फ शेम करते हो, आप अपने हर बॉडी पार्ट को इतना शेम करते हो, एंड जैसे ही आप अच्छा ड्रेसअप कर लेते हो आपको लगता है इट इज़ टू मच, आई डोंट वांट टू डू इट, एंड I just feel very irritated around those people who just don't take care of themselves. And in back of the mind, their mind, they keep on being jealous of those people who take care of themselves. So, not to offend anyone, everyone have their own choices and their own journey in their life to choose themselves, to start to choose themselves, but people who say कि dressing up, taking care of themselves, dressing well, बस वो लोग करते हैं जिनको दिखावा करना पसंद है, या फिर वो चाहते हैं कि लोग सिर्फ उनको देखें, उनको कॉम्प्लीमेंट मिलते रहें। ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, जब आप खुद के लिए ड्रेसअप करोगे, भले आप कहीं नहीं जा रहे, भले आप अपने रूम में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल टेक दैट स्लो शावर, भले 5-10 मिनट का ले रहे हो, ओके, उसमें एक खुशबू वाला एसेंशियल ऑयल डाल के आप शावर लो। आपको वो खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से फ्रेगरेंसेस पसंद है, ओके, एंड व्हेन यू विल स्क्रब योर स्किन एंड आप कोई आपका जो भी पसंदीदा क्लोथ है आप उसको चूज़ करके पहन रहे हो, आप उसमें 5 मिनट दे रहे हो खुद को चूज़ करने के लिए कि आज मैं ये पहनना चाहती हूँ। एक बार डिसाइड कर लिया, बस ठीक है, आज मैं ये पहनूँगी, एंड देन आप अपने बालों का ध्यान रख रहे हो, आप जैसे स्मेल करते हो उसका ध्यान रख रहे हो, एंड आप जैसे दिख रहे हो, लाइक आपके जैसे भी फीचर्स हैं, जैसा भी स्किन टोन है, डजंट मैटर, उसी को इन्हांस करिए, उसी से प्यार करिए, उसको हेट मत करिए। भगवान ने आपको परफेक्ट बनाया है, आपको कुछ भी प्लास्टिक सर्जरी या फिर कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस इसकी एक्सट्रीम नीड नहीं है, ओके। एंड आप
अपने आप को और जानिए कि आपको किस तरीके के परफ्यूम्स पसंद हैं, कौन से परफ्यूम्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, किस टाइप के क्लोथ्स के मटेरियल आपको पसंद है, उन्हें पहन के आपको कैसा फील होता है, किस टाइप के कपड़े आपको पसंद है, अपने बालों को कैसे कोम करके आप ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, आपको किस टाइप की ज्वेलरीज पसंद है, आप पे किस टाइप की ज्वेलरी सूट करती है, आपको कैसा दिखना पसंद है, आपके जैसे फीचर्स हैं उसमें किस टाइप का मेकअप सूट होता है, आपका जो स्किन टाइप है किस टाइप का मेकअप सूट होता है आपको। एंड आप 10 मिनट खुद के स्किन केयर को दोगे ना, योर स्किन इज गोना थैंक यू, ट्रस्ट मी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 मिनट अपने स्किन को देना है। फेस वॉश कर लो, थोड़ा मसाज कर लो, दैट्स इट, दैट्स इट। कुछ भी फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा फेस वॉश एंड देन आप क्रीम जो आपको सूट करती है, ऑयल जो आपको सूट करता है, उससे मसाज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। एंड जब ये सारी चीज़ें आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनकलकेट करेंगे ना, यू विल सी दैट your confidence will grow. You will start to see yourself differently, you will start to move differently, you will start to feel different about yourself. And and then you will feel good. Because trust me, earlier मैं अपने आप पे इतना ध्यान नहीं देती थी, बट जैसे जैसे मैंने अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट किया, मैं घर में, भले मुझे घर में रहना होता है पूरे दिन, लेकिन मैं अच्छे कपड़े पहन के रहती हूँ। मैं पूरा ड्रेसअप करके, जैसे मैं अभी हूँ, अगर मुझे कहीं नहीं जाना है मैं फिर भी ऐसे ही रहूँगी, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि आज मैंने खुद के ऊपर एफर्ट डाला है, मैंने एफर्ट पुट किया है ये शर्ट चूज़ करने में, ये पैंट चूज़ करने में, ये स्क्रंची चूज़ करने में, वैसे ही मैंने खुद बनाई है। एंड जो भी टचअप करना है मुझे अपने स्किन पे, उसको चूज़ करने में, देन मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट खुद को लेके बूस्ट होता है। आई स्टार्ट टू फील कि यार मैंने अपने ऊपर काम किया है, इट मीन्स आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम प्रेशियस, आई मैटर। And the moment I meet people who don't take care of themselves, I feel not interested in them. I start to feel disconnected. I start to feel कि okay, with all my love and understanding, मुझे ऐसे लोग अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि कोई पीछे से या फिर मेरे सामने भी पैसिव अग्रेसिव होके मेरी लाइट को डिम करे, या फिर मुझे टॉन्ट मारे, या फिर जेलसी हो, या फिर मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेजे। आई जस्ट डोंट लाइक दैट। एंड मुझे उसके साथ बैठा ही नहीं जाएगा। आई जस्ट स्टार्ट टू फील ऑफ। सो या, taking care of yourself and how you dress up, how you appear, and what you wear is actually very important, because it actually boosts your confidence. I know confidence comes from within, that is a totally different topic. Okay, वो एक totally different area है कि आप खुद को मास्क करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड योर होल वर्थ इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल ब्यूटी ओनली. That is a whole different topic, right? But you want to take care of yourself because you love yourself, because your body is a temple. So you want to decorate this temple, you want to keep this temple happy, clean, vibrant, chamakdar. Okay, that is a very different topic. So I do truly believe, I'm a firm believer that you should take care of your appearance and your clothes and your skin and how you look, because it actually adds confidence. You start to feel good about yourself. Okay, एंड अपने आप को दिन में आधा घंटा या फिर 1 घंटा देने से कोई काम लाइफ में रुक नहीं जाएगा, बिकॉज आपकी लाइफ के मेन कैरेक्टर आप हो. तो अगर आप ही हेल्दी, फिट, वाइब्रेंट, हैप्पी, कॉन्फिडेंट
नहीं रहोगे तो आपकी लाइफ के एरिया में, आपकी लाइफ में जो अलग एरियाज हैं वो भी अफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगे. यू विल you will not know it, but it will start to happen. The kind of people you will attract, the kind of choices you will make, the kind of things you will choose for yourself, it will start to indirectly affect you. So I truly believe that it is very important to take care of yourself, your physical body also. हम like spiritual domain में क्या होता है ना कि कभी कभी हम स्पिरिचुअलिटी में इतना खो जाते हैं कि हम ये समझने लगते हैं कि फिजिकल बॉडी इज़ नथिंग एंड दिस इज़ नथिंग. क्या पहने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे दिख रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम ट्रूली कनेक्टेड टू गॉड, आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू गॉड, विच इज़ ओके, विच इज़ ऑल गुड. बट ये बॉडी भी तो 5 एलिमेंट से बनी है जो हमें नेचर ने और गॉड ने ही दिया है, विच इज़ अ गिफ्ट. And you are rejecting this, then you are rejecting the gift of God, then you are rejecting the nature itself, because आपकी body तो खुद ही nature है, 5 elements से बनी हुई है. So I don't think it's true and it's valid to ignore your physical appearance and your physical beauty also. इसको सर पे चढ़ा लेना गलत है, लेकिन हाँ, सेल्फ लव में एक ये भी आस्पेक्ट है कि आप अपने फिज़िकल ब्यूटी का भी ध्यान रखें. एंड आपको अगर कुछ भी पहनने से, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन मेनली, रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आपको मेकअप करने से है, पर्टिकुलर कलर से है, पर्टिकुलर क्लोथ से है कि मुझे साड़ी नहीं पहनना, मुझे ड्रेसेस नहीं पहनना. अगर आपको नहीं पहनना, दैट इज़ डिफरेंट. अगर आपको वो पहनने से रेजिस्टेंस फील हो रहा है, दैट इज़ नॉट गुड. देयर यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ हीलिंग एंड इनर वर्क टू कम टू द अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली इज दिस रेजिस्टेंस कमिंग फ्रॉम द राइट प्लेस और कमिंग फ्रॉम द वुंडिंग. क्या मुझे कभी किसी ने शेम किया था, या फिर मेरे घर में ऐसे कपड़े जो पहनते हैं उनको शेम करते हैं तो इसलिए मुझे रेजिस्टेंस फील होता है, इसलिए मैं उन सारे लोगों को जज करती हूँ जो वो उस टाइप के कपड़े पहनते हैं. भले ही मुझे डीप डाउन वो पसंद है, बट आई हेट इट, आई डोंट वॉन्ट टू वेयर इट एंड आई जज इट एंड आई हैव रेजिस्टेंस टूवर्ड्स इट. सेम अगर आपको किसी सर्टेन टाइप के हेयर स्टाइल से प्रॉब्लम है, नेल पेंट से है प्रॉब्लम, या फिर ज्वेलरी से है प्रॉब्लम, या फिर मेकअप से है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लगती हैं, बट दीज थिंग्स आर नॉट स्मॉल इफ़ यू विल फोकस ऑन दीज थिंग्स. कि वाई यू डोंट वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वाई यू वॉन्ट टू अपीयर बैड, वाई यू वॉन्ट टू लुक बैड, वाई यू फील दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और वेस्ट ऑफ टाइम, कि आप अपने ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है. आपको इतना रेजिस्टेंस क्यों है, आप क्यों अपना ध्यान नहीं रखना चाहते हो? देयर यू नीड टू डू हीलिंग एंड इनर वर्क, बिकॉज पीपल हु ट्रूली लव देमसेल्व्स, दे, आप कभी भी देखना, ओके, जो भी मेंटर्स हैं हु ट्रूली आर ऑन देयर सेल्फ लव जर्नी, हीलिंग जर्नी, वो कभी भी गंदे कपड़े पहन के नहीं बैठेंगे. वो हमेशा अपना ध्यान रखेंगे, लोगों के सामने भी और जो अपने साथ रहते हैं तब भी. वो तो गंदे कपड़े पहन के नहीं घूम रहे हैं, वो तो ऐसी बाल को कैसे भी करके नहीं घूम रहे हैं कि फिजिकल ब्यूटी इज़ नथिंग, बट येट दे आर स्पिरिचुअल एंड दे आर ऑन देयर हीलिंग जर्नी, सेल्फ लव जर्नी. तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सेल्फ लव जर्नी ओनली. ये ढूंढना कि आपको इतना रेजिस्टेंस क्यों है, मुझे क्यों ये लिपस्टिक लगाने से रेजिस्टेंस है, मुझे क्यों आई मेकअप से है रेजिस्टेंस, मुझे क्यों सर्टन हेयर स्टाइल से है रेजिस्टेंस, हेयर लेंथ से है रेजिस्टेंस, मुझे क्यों अपने बालों का ध्यान रखने से रेजिस्टेंस फील होता है, क्यों मुझे नेकलेस पहनने से रेजिस्टेंस फील होता है, क्यों मुझे ज्वेलरी पहनने से
रेजिस्टेंस फील होता है, मैं क्यों जज कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं पसंद, मुझे ऐसे फेमिनिन कपड़े या फिर फ्लोई कपड़े पहनने से रेजिस्टेंस क्यों है। आपने जब ये सब चीज़ें ढूंढ ली, ठीक है, और फिर आपको देखना है कि क्या पास्ट में कभी किसी को शेमिंग की थी जिसकी वजह से मुझे रेजिस्टेंस फील होना स्टार्ट हो गया, आपकी मदर को या फिर आपको। क्या आपको ऐसा फील हुआ कि अगर मैं वो पहनूंगी, वो करूंगी तो आई बी जज्ड, आई नॉट बी लव्ड, आई नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये सब ढूंढने की ज़रूरत है। एंड एक्चुअली ये एक जर्नी है। एंड आप धीरे धीरे जैसे इस चीज़ को समझोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपको ड्रेसअप होना पसंद है, सबको पसंद होता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको उससे रेजिस्टेंस फील होता है। ओके, बाकी का कंटेंट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। On this note, I'll complete my video here. And if you guys like my content, then do like, share with your friends and family, subscribe and comment down below. I'll see you all in my next video. Till then, bye bye and take care.